Hello students, today I am teaching exercise 7.1 in that question number 4. Question number 4 is check whether 5, 2, 6, 4 and 7, 2 are the vertices of isosceles triangle or not. We know the meaning of isosceles triangle. Isosceles triangle means it is a triangle in which two sides are equal. So here points are given that I have written here. Here I mentioned point as ABC and you draw such type of triangle here. Now here we have to show that we have to find whether two sides are equal or not. We have three sides AB, BC and AC. With the help of distance formula, we'll find the lengths of AB, BC and AC. Then we'll see whether two sides are coming equal or not. So let me find AB here. So by using distance formula, AB, as you know, distance formula is x2 minus x1 or x1 minus x2, both are right, plus y1 minus y2 whole square. For A and B, A point is 5 and minus 2 and B point is 6 and 4. See, this one becomes x1 y1 and this one becomes x2 y2. So x1 minus x2 means 5 minus 6. You know how to put the values. I am putting the value 5 minus 6 whole square plus y1 minus y2, that is minus 2 and y2 is 4. So minus 2 and minus 4. Just put the value here, then simplify. 5 minus 6 is minus 1. Minus 1 square is 1. Plus minus 2 minus 4 is minus 6. Minus 6 square is 36. ओके देखो ये दोनों माइनस 6 हो जाएगा. माइनस 6 स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा. 6 स्क्वायर विल बिकम 36. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37 AB. So AB I got. Now I will find BC. BC again you can write distance formula or directly you can put the value. So let me put x1 minus x2 whole square, y1 minus y2 whole square. See, for B and C, B point is 6 and 4 and C point, you can see here, C point is 7 and minus 2. So this one x1 y1 and x2 y2. Now we'll put this value here. x1 x2. So x1 minus x2 means 6 minus 7. 6 minus 7 whole square 4 and then minus of minus बनेगा इधर. minus 2 है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. 4 plus 2 whole square. This is equal to square root. 6 minus 1. 6 minus 7 is minus 1. Minus 1 square is 1. Plus 4 plus 2 6. 6 square is 36. So this is square root of 37 and I got BC. When we observe, we are getting AB and BC equal. But we have to find AC also क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है. और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर. तो हमें चेक करना है कि ये बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं. तो कभी कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन सकता है. सो आफ्टर गेटिंग टू साइड्स इक्वल वी हैव टू फाइंड हियर थर्ड साइड ऑल्सो. AB BC I have done. Now I will find AC. For AC, A point is 5 and minus 2 and C point is 7 and minus 2. So this is x1 y1 and x2 y2. Put the formula. Okay, now just put the values here. x1 minus x2 5 minus 7 whole square plus y1 minus y2. तो क्या आएगा, y1 तो minus 2 है, ऑलरेडी इधर माइनस है, वन मोर माइनस, तो माइनस ऑफ minus 2 will become plus 2. So this is 5 minus 7. 5 minus 7 क्या आता है, minus 2.
-2 स्क्वायर, मैंने कहा था स्क्वायर है तो माइनस साइन निकल जाएगा। -2 स्क्वायर इज 4 प्लस, now see here, -2 plus 2, that is 2 minus 2 is 0, 0 square is 0। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 बच गया, देखो 4 plus 0 is 4, square root of 4 is 2, so AC I got as 2। Now you see here AB, BC and AC, so here I am getting two sides equal, so hence when two sides are equal then we say that as a isosceles triangle। तो जस्ट अब लास्ट स्टेप बचा है, जस्ट मेंशन हमें करना है। AB is equal to BC is equal to √37 and AC is equal to 2। Therefore this implies ABC is isosceles triangle। Okay, so question number 4 done। Now we'll see question number 5. Question number 5, this figure we have to refer. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, Champa पूछ रही है चमेली को, don't you think ABCD is a square? See, you can see here A, B, C, D we have points। और यहाँ पे चंपा और चमेली क्लासरूम एंटर किया और चंपा आस चमेली, वो बोल रही है, क्या बोल रही है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? ABCD स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है क्या तुमको? ऐसे वो बोल रही है। चमेली डिसअग्रीज, चमेली बोलते हैं नहीं मुझे तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट, मतलब कौन यहाँ पे करेक्ट है, चंपा राइट है या चमेली? चंपा को लग रहा है कि स्क्वायर है, चमेली को लग रहा है स्क्वायर नहीं है। सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज स्क्वायर और नॉट। सो फॉर दैट सी व्हेनेवर वी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स आर गिवन, है ना, पॉइंट्स ऐसे दिया हुआ रहता है, बट हियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, दैट इज कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है। सो फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड, हमें पेयरिंग फाइंड करना है, ए के पॉइंट्स क्या है, राइट तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना तो बहुत ईजी। वी नो दैट जब भी हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनता है तो एक्स और वाई फॉर्मेट में बनता है, दैट मीन्स फर्स्ट एक्स वैल्यू देन वाई वैल्यू। तो ए यहाँ पे है, राइट ए का एक्स वैल्यू इज 3, देखो नीचे देखो एक्स वैल्यू, ये एक्स है और ये वाई है। ए एक्स वैल्यू इज 3 एंड वाई इज 4, तो ए का पॉइंट बना 3 और 4, राइट। नेक्स्ट विल मूव विथ बी। बी का नीचे देखो एक्स क्या है 6 और वाई क्या है, वाई का यहाँ पे देखो 7, सो बी विल बी 6 एंड 7। नेक्स्ट सी का एक्स क्या है 9 एंड व्हाट अबाउट वाई इज 4। मेरे साथ साथ तुम लोग भी सोचो। अब डी है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इज एब्सेसाइज 6 और ऑर्डिनेट 1, राइट। अब हमारे पॉइंट्स पास पॉइंट्स मिल गए। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमें फाइंड करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। सो लेट मी ड्रॉ दिस वन इन नोटबुक। सी दिस इज द फिगर, एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है और हमें स्क्वायर है कि नहीं चेक करना है। फॉर देट यू फाइंड डिस्टेंस ए बी बी सी ए सी और ए डी हम फाइंड करेंगे, क्या आता है हम चेक करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू ए बी फॉर्मूला यू नो, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तुम लोगों को तो बार बार वो मैं नहीं लिखूंगी। x1 माइनस x2, तो ये x1 है और ये x2 है, सो 3 माइनस 6। तुम लोग ना 3 माइनस 6 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिगर नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रहता है। फॉर्मूला क्या है एक्चुअली स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। यू ट्राई टू राइट बिगर नंबर फर्स्ट सो दैट हमें साइन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो आई कैन राइट हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 माइनस 6 आई विल राइट 6 माइनस 3, बोथ आर सेम। सो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 देन y1 माइनस y2। 4 और 7 एंड 7 इज ग्रेटर, तो मैं 7 माइनस 4 लिख देती हूँ।
तो इससे क्या है ना, हमारा टास्क इजी हो जाता है। देखो सब्ट्रैक्शन इजी बन गया। नाउ दिस 6 - 3 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 7 - 4 3, 3 स्क्वायर इज 9। अब ना 9 + 9 18 मत करना, 18 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो वैसे ही मैं करती हूँ। 9 + 9 18 बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 18 तो है नहीं, बट वी कैन स्प्लिट। लास्ट ईयर हमने हीरोज फार्मूला में, हेरोइंस फार्मूला में स्प्लिटिंग मेथड सीखा है। सो 19 कैन बी रिटन एज 2 × 19। सो यू कैन अवॉइड दिस स्टेप। यहाँ पे देखो 9 + 9 मतलब x + x इज वॉट 2x, तो 2 × 19 ऐसे भी कर सकते हो। सो 19 नहीं, सॉरी 9, 2 9s। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 पॉसिबल है, सो इट इज़ 3√2। ए √2 का पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा। ए बी आई गॉट एज 3√2। ऑन सिमिलर बेसिस वी हैव टू फाइंड, ए बी हो गया, अब मैं बी सी फाइंड करूँगी। बी सी। अब तुम लोग ये फिगर को ड्रॉ कर लो, क्योंकि बार बार मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, राइट। तो मैं यहाँ पे देख देख के बी और सी डिस्टेंस फार्मूला में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। x1 - x2 स्क्वायर, सो एज आई कैन सी 9 - 6 आएगा। 9 - 6 x वैल्यूज देखना, 9 - 6, सो 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 7 - 4, बिगर नंबर ले लो, y वैल्यू 7 - 4, 7 - 4 whole square. This is equal to 9 - 6 is 3 square, which is 9, plus 7 - 4 again 3, 3 square is 9. देखो यही फॉर्मेट आ गया ऊपर वाला। तो 9 + 9 स्क्वायर रूट का क्या आया था, 3√2 आया था, तो मैं वही लिख देती हूँ 3√2। सो बी सी आई गॉट एज 3√2। सिमिलर बेसिस पे तुम लोग सी डी भी फाइंड करना, ओके, और ए डी भी फाइंड करना, यही आएगा। चलो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी वैल्यू और डी वैल्यू देखना। एक्स वैल्यू क्या है 9 - 6, 9 - 6 स्क्वायर प्लस वाई वैल्यू इज 4 - 1, 4 - 1 होल स्क्वायर। This equal to square root of 9 - 6 is 3, 3 square is 9, 4 - 1 is 3, 3 square is 9। देखो फिर से वही फॉर्मेट विच इज 3√2। तो सी डी भी आ गया 3√2। अब तुम लोग ए डी फाइंड कर लेना। ए डी अगेन वी गेट 3√2 ओनली, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 3√2, ओके। सो ऑल साइड्स ए बी, BC, CD, AD, आई एम गेटिंग 3√2, 3√2, 3√2। अब मुझे बोलना है कि स्क्वायर है या नहीं, राइट। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल। बट ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस में भी है, राइट। तो अगर मैं खाली साइड्स फाइंड करके मैं बोलूँगी यस इट इज़ अ स्क्वायर, तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वाई, ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी है, देन आई कैन से इट इज़ अ रोम्बस ऑल्सो। तो स्क्वायर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें एक स्टेप और जानना है, क्योंकि स्क्वायर में एक वन मोर प्रॉपर्टी है, दैट इज अ डायगोनल कंडीशन। डायगोनल का क्या है, हाउ द डायगोनल्स इन स्क्वायर आर, डायगोनल्स इन स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल इक्वल रहता है। अगर मेरा बी डी और ए सी इक्वल आ गया देन आई कैन से दिस इज अ स्क्वायर। तो अभी मेरा टास्क बाकी है ए सी और बी डी फाइंड करना। यहाँ देखो मैंने खाली डायगोनल ड्रॉ किया है, राइट। मैंने इस स्क्वायर वाला छोड़ के खाली डायगोनल ड्रॉ किया है। नाउ आई विल फाइंड ए सी अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1। 3 एंड 9 है, तो बिगर नंबर पहले लिखो, 9 - 3 होल स्क्वायर, y2 - y1, ये तो 4 और 4 है, कुछ भी लिखो, 4 - 4 स्क्वायर। सो 9 - 3 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36, और ये 4 - 4 0, 0 स्क्वायर इज 0, तो 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
So AC is equal to 36. Root 36 है, so AC is equal to 6. AC आ गया. Now we'll find BD. BD is equal to square root of, और B और D का पॉइंट्स देखना. This is BD. x1 minus x2, 6 minus 6, that is 0. तो ये तो 0 बन गया. 0 square plus y2 minus y1, 7 minus 1. 7 minus 1 square. This is equal to 0 तो हट गया. 7 minus 1, 6. 6 square is 36. अब BD is equal to square root of 36 is 6. Now you can see here diagonals are also coming same. That means what? यहाँ पे so what does this whole question implies? All sides equal. We got all sides equal and diagonals equal. So when all sides equal and diagonals equal condition we are getting, then that is nothing but what? It is the property of square. So ABCD is square. तो यहाँ पे कौन करेक्ट हुआ? चंपा या चमेली? चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर दिख रहा है. चंपा asked चमेली, don't you think it's a ABCD is a square? So चंपा is right and चमेली is wrong. ओ लास्ट में तुम लोग मेंशन कर सकते हो चंपा वाज राइट. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. नाउ नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड. यहाँ पे कुछ तो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है और उसका नेमिंग हमें करना है. तो क्वाड्रिलैटरल में हमें पता है जो मेन है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बोस, काइट भी है हमारे पास, फिर ट्रेपेजियम भी है, राइट. तो एक इस पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है वो हमें लिखना है. इट मे बी अ स्क्वायर, इट मे बी अ रेक्टेंगल, इट मे बी अ पैरेललोग्राम. तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करना है कि इस पॉइंट से क्या बन रहा है. ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. Students, I have written that 6 question. First one, whatever the points are given there I named as A, B, C, D. You can write only this much or you can represent that in a figure format. हमें पता नहीं कि कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करो और पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करो. और पॉइंट में भी ऐसे कुछ नहीं है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो. यहाँ पे ए है तो अगर तुम लोगों ने ए यहाँ पे यही मेंशन किया है तो वही पॉइंट्स आएगा. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट. दिस इज द फिगर. नाउ विल फाइंड. देखो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सब प्रूव करने के लिए हमें साइड्स तो चाहिए. तो साइड्स हम फाइंड करेंगे ए बी. ए बी अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1. तो x2 क्या है या x1 माइनस x2 वॉट एवर. -1 एंड -1. देखो दिस माइनस दिस, -1 एंड -1 होल स्क्वायर. x1 माइनस x2 देन प्लस y1 माइनस y2. तो -2 एंड 0. तो -2 माइनस 0 इज वॉट? -2. तो -2 होल स्क्वायर. Now this is equal to square root of -2 minus 2 is -1 minus sorry -1 minus 1 is -2. -2 square is 4. -2 square is 4. तो ये में 4 plus 4 8 मत लिखना है. ये क्या आएगा? 2 into 4 आ जाएगा. देखो 2 बार 4 है तो मैं 2 into 4 लिख देती हूँ, विच इज़ 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है. तो ये 2√2 बन गया. तो ये भी मेरे पास आ गया 2√2. अभी जो हमने चंपा और चमेली में किया था ना, वैसे ही सब हमें BC भी फाइंड करना है, CD भी फाइंड करना है और AD भी फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. स्टूडेंट्स, मैंने AB फाइंड करना सिखाया तुम लोगों को. एवरी टाइम वी आर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. फिर बार बार मैं BC, CD, AD में सिखाऊंगी ना तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा हमारा, तुम लोग भी बोर हो जाओगे. एंड यू नो हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला एंड हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस. सो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख दिया है. ये तो मैंने सिखा दिया AB. सी व्हेन वी फाइंड BC बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला CD एंड AD, again we are getting 2√2, 2√2, 2√2. So all sides become equal.
तो ऑल साइड्स इक्वल होता है तो डायरेक्टली हमें रोम्बस या स्क्वायर लिख नहीं देना है। जब भी ऑल साइड इक्वल आता है तो हमें वन मोर स्टेप में जाना है, दैट इज़ डायगोनल। तो एक डायगोनल हम फाइंड करेंगे, आइदर यू कैन फाइंड बी डी ऑल्सो और ए सी ऑल्सो। और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे पॉइंट गड़बड़ किया था, ज़ीरो लिख दिया था गलती से, सो दैट आई एम चेंजिंग हियर, इसका ज़ीरो इधर डाल दिया था। ओके, सो विल फाइंड आइदर यू कैन फाइंड दिस और दिस। मैं बी डी फाइंड करके दिखाऊंगी तुम लोगों को अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बी डी इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 1 एंड माइनस ऑफ -3 या -3 -1 कैसे भी लिख सकते हो। तो x1 माइनस x2 मीन्स 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा लाइक दिस, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, वो टर्म तो ज़ीरो है तो ज़ीरो वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो या लिखोगे तो भी चलेगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 1 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आता है, 4 आता है। सो बी डी आई गॉट एज 4। When you find AC also by using distance formula, again you are going to get 4 only. अभी जो हमने चंपा और चमेली का किया था ना, वैसे ही है ये क्वेश्चन। ऑल साइड्स आई एम गेटिंग इक्वल, diagonal I am getting equal. So with this what I can say now? I can say ABCD is a square. So just to mention this implies ABCD is square. वहाँ पे क्वेश्चन में है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो रीज़न में क्या लिखोगे, जैसे मैंने चंपा और चमेली का मैंने दिखाया था तुम लोगों को, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट यू कैन राइट हियर। तुम लोग यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, हेंस ABCD स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड।